Welcome to the class of Universal Human Values. Dear student, in the last class we have discussed about the respect, what is respect and how it is affected by the differentiation. So in the last class we have discussed about different types of differentiation. How right evaluation is affected. It is affected by the body, appearance, age, gender, race, physical strength, and it can also be affected by the physical facilities, wealth, host and beliefs. So we differentiate among different types of people on the basis of physical facility, beliefs and body. So this create gross misunderstanding in human. What is gross misunderstanding? This is the preconditioning, because since our childhood we have been taught this is Hindu, this is Muslim, this is Sikh, this is Isai. Because since our childhood we are getting this information, we have been taught, our preconditioning has been done. So it affects. But what are universal human values? It is same. It is applied for everybody because we all are human beings. So universal human values is applied to all the human, whether it is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, male, female, okay, children, but it is applied to all. So what is the reality? Everybody is like me. Like among all the human, everybody is like me. Are you able to see the screen? Differentiation. So differentiation leads to disrespect. Now you can say, what is this differentiation? This differentiation leads to disrespect. What is respect? Right evaluation. But what is disrespect? That is generated by differentiation. But I think, in my vision, what is my vision? This is our understanding, how we take our religion, how we consider the physical body strength, the different types of the differentiation. This is our understanding. So in the last classes you have also studied about right understanding, relationships and physical facilities. I think this is the problem of right understanding. Okay? Because we sometimes misunderstood these things, like Hindu, Muslim, they did nothing. No problem in that. The problem is how we understand this concept. Okay? How we consider the religion. So we should respect the diversity and differentiation of other religion also. If we have the right understanding for the religion and for the diversity of all the, because diversity is the beauty of the, like within India you can see there are different states and we have the diversity within the India also, and this is the beauty of our country. So this differentiation we cannot say that this directly affects. But now what is happening? We misunderstood these things. So that is why this is responsible for the disrespect. Sometimes it has been treated as a disrespect. But being from the different reason, this is not a bad thing, this differentiation. Because we have been brought up in the environment, if we study, you have studied that we have been brought up in the different kind of environment. So environment affects. So diversity is due to the environment, physical factor or climate. Okay, so there is no cause that we should disrespect anybody. Okay, that is all occurred due to the environment. Okay. So we should accept these things. Okay, just think like a word, and if we have the same people with same face in the world, the same type of plant, कि इस संसार में सब लोग एक जैसे हों, सब एक जैसा हो, कैसा सिस्टम होगा वो जहाँ सब लोग एक ही जैसे होंगे. अगर फिजिकल अपीयरेंस में कोई डिफरेंस है तो इसमें नथिंग इज बैड. एक गार्डन है उसमें एक ही तरह के फ्लावर हैं, और एक गार्डन है जहाँ पे तरह तरह के फूल हैं. सो कैन कंसीडर कि एक गार्डन है जिसमें मल्टीपल फ्लावर्स हैं और एक गार्डन ऐसा है जिसमें एक ही तरह के फ्लावर हैं. विच वन डू यू वांट टू विजिट? विच वन डू यू वांट टू विजिट? जो डाइवर्स होगा उसी को आप देखना चाहेंगे ना, जिसमें डाइवर्सिटी है, जहाँ पे तरह तरह की डाइवर्सिटी होती है. सो दिस इज तो बड़ी है द डाइवर्सिटी. ओके, एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट. तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इट्स अप टू अस हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंशिएशन. On the basis of this differentiation, gender discrimination, male, female, what I am trying to say,
universal human values are equal for everybody, so everybody is expected to follow up that. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सभी को फॉलो अप करना है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सेम है, we have to follow up. So this kind of differentiation leads to generation gap, black as white, powerful or oppressed. So it's up to us, ये मैंने आपको बता दिया, it is up to us कि हम कैसे समझते हैं उन चीज़ों को. So problem किस चीज़ में है, बाहर नहीं है. We get the mobile has been discovered to facilitate the communication. जिसने मोबाइल बनाया होगा उसने, मोबाइल बनाने वाले ने तो इसलिए बनाया ना कि चाकू बनाया तो उसने काम करने के लिए बनाया था ना, को बनाया काम करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो नाइफ है दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड टू डू द वर्क, नॉट टू मर्डर एनीबडी. जिसने बनाया उसने मर्डर करने के लिए तो नहीं बनाया होगा ना, पहला इन्वेंशन किया होगा. जो इन्वेंटर है, लाइक द मोबाइल, सेम थिंग हैपन विद एवरीथिंग. सो द प्रॉब्लम इज इन आवर अंडरस्टैंडिंग. जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है. नाउ कम टू द रेस्पेक्ट. आवर पर्पस इज सेम, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम. ऐसा तो नहीं है कि रेस्पेक्ट, आई नीड रेस्पेक्ट एंड यू डोंट नीड रेस्पेक्ट, ये सेम होगा ना. लाइक मैंने आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया ना, फिजिकल जो नीड है सबकी सेम है, बेसिक नीड. लाइक आई नीड फूड, ऐसा वी ऑल नीड फूड, वी ऑल नीड एयर. ऐसा नहीं है कि इसको हवा चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना. तो इसमें हम सेम हैं. अगर हम देखें तो फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो भी सेम है. अब इसमें फ़िज़िकल को नहीं फोकस किया, लेकिन हाँ फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी तो हमारी सेम ही है ना. जो मैन मेड है वो अलग हो गई. प्रोग्राम इज सेम, आवर प्रोग्राम इज सेम, मीन्स वी ऑल वांट टू लाइव इन हारमोनी. डू यू वांट टू लाइव इन द डिसहारमोनी? क्या आप रोज़ लड़ सकते हैं? डू यू वांट टू फाइट एवरी डे? कुछ लोग लड़ते रहते हैं हम कहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो लड़ने के लिए ही पैदा हुआ है, या ऐसा भी नहीं है कि किसी ने जन्म लिया है तो आपको परेशान करने के लिए पैदा हुआ है. वो तो अपने लिए, एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, एवरीबडी वांट टू बी लाइव इन द हारमोनी. सभी को खुश रहना है ना, एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी. और वो अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या करता है, कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, ऐसा हो जाता है. लेकिन किसी ने भी जन्म लिया है तो उसने ये सोच के तो नहीं जन्म लिया है ना, या जन्मा है कि मैं दूसरे को परेशान करूँगा. दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ह्यूमन. अब धीरे 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 क्या होता है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, जो भी है प्री कंडीशनिंग है, कुछ भी कह लीजिए, हम उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं. दैट्स व्हाई दिस हैपेंस, ग्रोस मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस इन द सोसाइटी. अदर इज सिमिलर टू मी. कॉम्पिटेंस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ राइट इवेल्युएशन ऑफ आवर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस. So we should work to identify the mutual competence. What is similar in me means how you are similar to me. But हमारा फोकस कहाँ पे होता है, how we are different from others. हम दूसरों से अलग कैसे हैं, हमारा फोकस यहाँ पे होता है. Can we shift our thinking कि हाँ we are similar to others. ठीक है ना. Competence on the basis of right evaluation of our mutual competence, I recognize our complementarity, means he is also required in the family, I am also required in the family. या फिर in the garden, that this flower is required in the garden, another one is also required. In the forest there are the different types of plants and different types of animals, so all are required to be recognized as a forest. तभी हम उसे फॉरेस्ट कहते हैं ना. जंगल में क्या कहते हैं कि सभी तरह के एनिमल्स होंगे, सभी तरह के प्लांट होते हैं, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की आइडेंटिटी क्या है, वी हैव डाइवर्स प्लांट्स एंड डाइवर्स काइंड ऑफ एनिमल. सपोज इन द फॉरेस्ट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ ट्री, एक ही तरह का पेड़ है वहाँ पे बस. सो डू यू वांट टू विजिट दैट फॉरेस्ट? एनिमल्स भी वहाँ सब नहीं रहेंगे, फिर नो एनिमल्स विल लाइव देयर. एनिमल्स भी कहाँ जाएंगे, दे विल विजिट द फॉरेस्ट इन विच वी हैव द डाइवर्सिटी. ये तो एनिमल्स के अंदर भी है. सो ग्रोथ, बट एक सिमिलैरिटी भी होती है हमारे पास. सिमिलैरिटी होती है, कॉम्पिटेंस होती है सबकी अलग अलग. समबडी इज गुड इन अदर, समबडी इज गुड इन सिंगिंग. कैन आई लर्न सिंगिंग फ्रॉम दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस? अगर किसी में कॉम्पिटेंस है, वी शुड रिकॉग्नाइज दैट टैलेंट. कैन बी लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, या हम उसको रिकॉग्नाइज करें. किसी में कोई भी टैलेंट है, स्किल होती है. कॉम्पिटेंस, आई रिकॉग्नाइज अवर कॉम्प्लीमेंट्रिटी. हाउ द स्किल इज रिक्वायर्ड,
कैसे रिक्वायर्ड है वो? हमें सभी कुछ तो चाहिए, लाइक हमें कपड़े चाहिए होते हैं, वी नीड क्लॉथ टू वियर, उनको कौन सिलता है? टेलर। सो यू नीड द हेल्प ऑफ टेलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, सो आई एम गिविंग माई क्लॉथ टू द टेलर। और टेलर क्या करता है? वो हमें सिल के देता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हम सारे काम खुद ही कर लेंगे। सारे काम खुद करने का मतलब है जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग, पानी लेके आना, और घर में क्या क्या आता है? दूध, मिल्क, यू ड्रिंक। तो पहले आपको दूध लेने जाना होगा, दूध निकालना भी पड़ेगा। दूध कहाँ से आता है? काव एंड बफेलो। तो आपको गाय और भैंस पालनी भी पड़ेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप अपना काम खुद कर लेंगे, कैन यू डू दैट? सारा काम कर सकते हैं क्या? सबकी कॉम्पिटेंस अलग अलग होती है, लेकिन हम सोचें कि हम मॉर्निंग में पहले दूध पियेंगे, तो दूध के लिए क्या है? गाय भैंस पालनी होगी, उनकी देखभाल भी करनी होती है, उनके लिए चारा भी लाना होता है। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। चारा लेके आओ, फिर उन्हें खिलाओ, फिर दूध निकालो, दूध पी के आना, फिर क्या आप क्लास में पहुंच पाएंगे टाइम से? सपोज यू नीड टू वियर द क्लोथ्स, यू विल टेक ए बाथ। साबुन कहाँ से है? कोई बना रहा है ना साबुन। एंड सपोज यू थिंक दैट आई विल मेड ए सोप, पहले मैं साबुन बनाऊँ फिर उससे नहाऊँ। Everybody has a competence. We should recognize the competence of others and we require the skills of others. तो एक ही सोसाइटी में there are different person, उनकी competence होती है। तो हमें कपड़े भी चाहिए, तो उनको टेलर सिलता। कपड़े बनाता कौन है? बनाने वाले अलग हैं, वो भी चाहिए ना हमें। So we can't do our all the work. Everybody has the skills, और वो हमारे complementary हो गए। Means ये काम मैं नहीं कर सकता, can I do something for them? और हम जिसमें स्किल्ड हैं हम वो काम करेंगे। फिर हमारी कॉम्पिटेंस कुछ अलग होगी। नाउ वी आर स्टडिंग लाइक यू आर स्टडिंग इन द बीटेक, सो यू विल डेवलप द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। सपोज somebody will develop a mobile application, somebody will develop a computer hardware part, so that will be helpful for the society. In that way you will help, because you are giving them the technology, you are facilitating the society with the technological advancement, you are facilitating the communication। हो सकता है आप ऐसा कुछ बनाएं जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करें, तो योर कॉम्पिटेंस विल वेरी। और ये भी तो एक तरह का डिफ्रेंसिएशन है, बट दैट इट शुड नॉट लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट्रिटी। सभी के काम अलग अलग हैं, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। एवरीबडी नीड रिस्पेक्ट, एवरीबडी रिक्वायर टू बी हैप्पी। सबको हैप्पीनेस चाहिए, सभी को चाहिए ना। जो कपड़ा बुनता है उसको भी चाहिए, जो कपड़े सिलता है उसको भी चाहिए। तो आई रिकॉग्नाइज आवर कॉम्प्लीमेंट्रिटी इफ द अदर हैज़ मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग किसी तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ। ये कहाँ से आएगी? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ। इफ द अदर हैज, सबको दिखाई दे रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ राइट इवैल्यूएशन ऑफ आवर म्यूचुअल कॉम्पिटेंस आई रिकॉग्नाइज आवर कॉम्प्लीमेंट्रिटी। कॉम्प्लीमेंट्रिटी को हम रिकॉग्नाइज करें। ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज we perform different kind of work, our skills are different, so that is why this word has been used. If the other has more understanding, is more responsible than me, I am committed to understand from others. Okay, I am committed to understand from others. ठीक है, लाइक वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर मदर, फ्रॉम आवर फादर। इफ़ दे आर मोर, हमें लगता है वो ज़्यादा समझदार हैं और हम उससे पूछते हैं, वी यूज टू आस्क द क्वेश्चन, लाइक इन द चाइल्डहुड वी यूज टू आस्क द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आवर मदर एंड फादर्स। आई एम कमिटेड टू लर्न फ्रॉम अदर्स, इन दैट वे वी कैन लर्न फ्रॉम द सोसाइटी ऑल्सो। इवन यू लर्न, okay, since you wake up in the morning, you learn the different things. You are living the hostels, you can learn the different things from other students. हॉस्टल में भी होता है ना कि somebody is good in any word, तो you can learn that word जिन्हें आप सीख सकते हैं। Understand from others. If I have more understanding, I am more responsible than other.
लेकिन ऐसा सोचना है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल दैन अदर। अगर मुझे लगता है अगर मुझे ऐसा लगता है आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, आई हैव मोर अंडरस्टैंडिंग दैन अदर्स, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? कई बार हमें लगता है ना कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन दैट कंडीशन वॉट यू कैन डू, वॉट यू हैव टू डू, I live with responsibility with others. I will live with the responsibility with others unconditionally, unperturbed by the behavior of other. Okay. I will live with responsibility with other. ये हम किस लिए करेंगे? टू मिनिमाइज द कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है उससे भी आपको अफेक्टेड नहीं होना है। तो आई विल लाइव विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर अनकंडीशनली। अनकंडीशनल कुछ भी होता रहे लेकिन हमें my behavior should not be affected by that behavior of the other, but ये affect करता है। like if somebody treated us badly, if somebody misbehave us, we feel bad, ये हमें affect करता है। लेकिन हमें क्या सोचना है कि उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है। if somebody is misbehaving तो ये this is the fault of others, if somebody is misbehaving that is the fault of others, that is not your fault. So you should be unperturbed by the behavior of other. Now second one, I am committed to facilitate understanding in the other. और हमें क्या करना है? If I think I have more understanding, then I am committed to develop the understanding in others also. तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमें सबको समझदार बनाना है। मैं समझदार हूँ तो दूसरों को भी हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा। लेकिन if he is agree to in the other, once the other is assured in the relationship, if he or she is assured in the relationship, you can say something to them and not before that, not before that. अगर कोई एग्री नहीं है समझने के लिए और आप उसे ज़बरदस्ती समझाने पहुंच जाएंगे, then there will be fight. What happens? क्या होता है? फाइट हो जाती है। लोग जाते हैं दूसरों को समझाने, बिना समझे हम दूसरे को समझाने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? फाइट होती है, मारपीट हो जाती है, कई बार मार पिटाई हो जाती है ना। बट जनरली दिस ऑल प्रॉब्लम अकर इन द मेल्स एंड बॉयज़ में होती है प्रॉब्लम, फाइटिंग हो जाती है। इन द हॉस्टल डू यू फाइट? समझाने पहुँच जाएंगे दूसरे को, है। बट वंस दैट पर्सन इज एश्योर्ड मीन्स ही और शी दे शुड इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको समझा सकते हैं, थोड़ा समझाया जा सकता है। इफ़ ही इज़ एग्री, अगर कोई एग्री नहीं समझने के लिए, आप नहीं समझा सकते ना उसको। ही और शी शुड बी इन दैट स्टेट, उस स्टेट में होना चाहिए कि वो समझ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वी डू द फॉल्ट, हम लोग उन्हें समझाते हैं उस स्टेज में जब वो समझना भी नहीं चाहते हैं। ही इज़ इन द एंगर और हम उसे समझा रहे हैं, नहीं समझ। तो वी कैन नॉट ओके, द रिमेनिंग लेक्चर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So we can teach the person in the state in which they are ready to learn. If they are not ready, we cannot teach anybody. कॉम्पिटेंस में क्या आएगा? कॉम्पिटेंस में क्या आएगा? कॉम्पिटेंस में अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, एक्सप्रेशन। रोल नंबर 67 मानसी यादव, अल्ताफ कैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद हसीब अली, मोनू यादव, नीरज, नीतीश, नौरुल्ला, पारो सिंह, प्राची, प्रदीप, प्रहलाद, प्रियांशु, राजवर्धन, रवि प्रकाश, ऋषभ एब्सेंट है ना, ऋत्विज, रिया बंसर,
रोमित, रूपेश यादव, सचिन मौर्य, सचिन वर्मा, साहिल पांडे, समीर, संदीप, संध्या, सौरभ, शैलेश, शांतनु, शाश्वत, शिखर, शिवदयाल, शिवम कुमार, शिवांश गौतम, शोभित, श्रद्धा, सृष्टि, शुभम द्विवेदी, शुभम मौर्य, शुभम यादव, सिद्धार्थ सिंह, सिद्ध कुमार, सुमित कुमार यादव, सुनैना, सूर्यभान, सूर्यांश सिंह, सूर्यांश, तनिष, उज्जवल, उत्कर्ष, वैभव मिश्रा, वैभव तिवारी, वंदना, विकास, विमलेश, विनय, विशेष, यश कुमार कश्यप, हाँ?